A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11 accountancy, that is the journal entries related to the different adjustment in final account. You know very well, when we prepare the financial statement of the sole proprietorship with adjustment, in this situation, we face a lots of adjustment which are given outside the transparency. And you know very well, adjustment have affect at least two accounts in the financial statement of sole proprietorship. So if we are talking about the journal entries of such adjustment in the final account, so firstly in this video we discuss our journal entries and the impact of such adjustment in the final account of the sole proprietorship. So without creating any kind of delay, let's we move to the very important topic, that is our adjustment in final account, its effects and its adjustment entries at the time of the preparation of the final account of the sole proprietorship. Okay, so let's start today's class. Please listen carefully and watch carefully. Okay, so basically you know very well, if we are talking about the practical problem related to the financial statement with adjustment, so let's we take the first few important practical problems. So these are the adjustment, like a closing stock or stock at the end, rupees 12,000. The closing stock of rupees 12,000. Number second, if there is an income which are accrued means any income which is earned but not received, rupees 5,000 subject to levy 6% CGST and 6% SGST. Income which are accrued rupees 5,000 subject to levy 6% CGST and 6% SGST. Let's take the third adjustment. In this session, we take the different adjustment for creating a better understanding. So these adjustments are not in a serial wise. These adjustments are given randomly. Okay. So एग्जाम में भी ऐसा नहीं कि आपको स्टेप बाय स्टेप ही एडजस्टमेंट गिवन होगा, वो भी हो सकता है मे बी आपको रैंडमली गिवन हो सकता है फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन हो, 10th एडजस्टमेंट गिवन हो एंड 20th एडजस्टमेंट गिवन हो. एंड नंबर थर्ड इज मैनेजर्स कमीशन provided at the rate of 10% of net profit after charging such commission. Okay, managers commission provided at the rate of 10% net profit after charging such commission, and the net profit are, so the net profit equals to rupees 1,10,000. Sorry for the mistake. Okay, so these are the adjustment. So how we will solve and how we will show such adjustment in the financial statement of sole proprietorship, let's we discuss about it. So the solution of such adjustment in the financial statement of sole proprietorship are as follows. So number one is a closing stock. So the solution number one, closing stock you know very well, stock which are unsold at the end of the year. जो स्टॉक साल के अंत में बिना सोल्ड हुए रिमेन रहता है, यानी वो बिकता नहीं है, इट विल बी नोन एज एन क्लोजिंग स्टॉक. ओके, सो क्लोजिंग स्टॉक की पहला इफेक्ट क्या होगा, पहले तो मैं इसकी जनरल एंट्री बता दूँ. सो द एडजस्टमेंट एंट्री ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक इज द एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक account debit to
trading account. Okay, and what is the amount of the closing stock? That is a 12. Okay, so the journal entry of the first adjustment is closing stock account debit to trading account. And what are the effect of such adjustment in the financial statement of the sole proprietorship? So the effect number one, you can see that trading account will be credited. So the closing stock will be shown in the credit side of trading account. Trading account किस साइड शो होता है? In the credit side. And number second, you know very well, closing stock will be shown in the asset side of the balance sheet. It will be shown in the asset side of the balance sheet. Okay, so please note down the first solution of such adjustment. यानी when you prepare the trading account, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक की साइड शो करोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या लिखोगे? यू विल शो द क्लोजिंग स्टॉक एट द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. ओके, नेक्स्ट वी मूव टू द सेकंड adjustment. The second adjustment, and you can see that it is a very tricky adjustment. Okay, so the second adjustment will be a income which are accrued rupees 5,000 subject to levy 6% CGST and 6% SGST. And income जो है वो accrued है. Accrued income मतलब income which are earned but not received. कोई भी ऐसी income जो आपने कमाई तो है but आपको मिली नहीं. So in this situation, you know very well, the journal entry will be on the solution number 2. The journal entry of number 2 is, you know very well, that is a accrued commission account debit to commission. And then you know very well, at the time of the income, the businessman received the GST, and when we receive the GST, it will be termed as the output CGST and output SGST. So is shown in the output CGST and output SGST. So what is the amount of the commission according to the quotient? The amount of the commission according to the quotient is 5,000 and output CGST will be 6%. So 5,000 का 6% कितना होगा? 300 and 5,000 का 3% होगा 6% होगा 300 and total accrued commission will be 5,600. So sir, इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा? सिंपली देखना है. इस जनरेटरी से you can easily identify the accrued income with GST का इफेक्ट कैसे पड़ेगा. So accrued commission will be shown in the asset side of the balance sheet. यानी जो accrued commission आपको दिख रहा है 5,600, इसे आप कहाँ लिखोगे? बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखोगे. जो कमीशन है 5,000, it will be added to credit side of PL account. ठीक, यानी कि कमीशन को क्या करोगे? PL अकाउंट के क्रेडिट साइड में कमीशन में ऐड कर दो. कितना मीन्स दैट इज 5,000 एंड आउटपुट CGST एंड आउटपुट SGST को आप क्या करोगे? रिस्पेक्टिवली आप इसको क्या करोगे? ऐड कर दोगे. इसमें ऐड कर दोगे. आउटपुट CGST विल बी एडेड टू द आउटपुट CGST हेड and output SGST will be added to the output SGST. Okay, I hope it is clear for you. We move to the third adjustment. The third adjustment will be your manager's commission. It is something very confusing. Sir, tell me, what is the basic effect of such adjustment in the financial statement of sole proprietorship? Basically, you know very well, in this question, there is an information about the manager's commission provided at the rate of 10% of the net profit after charging such commission. And इसमें बोला है net profit after charging such commission. After charging such commission के लिए फॉर्मूला क्या लगता है? You know very well. So the manager's commission after charging के लिए फॉर्मूला लगता है net profit into rate upon
100 plus rate. So the net profit is 1,10,000. Rate is 10. 110. So your net profit will be 10,000. According to the quotient, the manager's commission will be 10,000. How? 1,10,000 is the net profit according to the quotient, and the manager's commission provided 10% of net profit after charging such commission. After charging the rate upon 100 plus rate. So 10 upon 110 equals to, that is 1,000. 1,000 multiplied by 10 equals 10,000. इसकी एंट्री क्या होती है? You know very well. The entry of manager's commission will be manager's commission account debit to outstanding manager's commission. So according to the quotient, you can see that the manager's commission amount is rupees 10,000, and manager's commission को हम लोग शो करेंगे in the debit side of the PL account. Debit side of PL account, and this manager's commission will be shown in the liability side of balance sheet. यानी इस मैनेजर्स कमीशन को हम लोग शो करेंगे in the debit side of the PL account, and this outstanding manager's commission will be shown in the liability side of the balance sheet. Okay, so please note down. So after solving the practical problem related to the various adjustments which are given outside the trial balance, let's we move to the last adjustment of this chapter. And you know very well, we discussed the very important chapter, that is a financial statement with adjustment. So let's we move to the last adjustment of the chapter, that is a preparation of the financial statement of sole proprietorship with adjustment. Okay, so this is the last adjustment. The name of the last adjustment is sale of goods on approval basis. Sale of goods on approval basis, ये एडजस्टमेंट क्या है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है बैलेंस शीट पे, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट. द मीनिंग ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस इज समटाइम्स goods are sent to valued customer on sale or return basis, or sale or return basis. बेसिकली यहाँ वैल्यूड कस्टमर का मतलब ये है द ट्रस्टेबल कस्टमर. ट्रस्टेबल कस्टमर आर दोस कस्टमर जिनको हम गुड सोल्ड करते हैं ट्रस्ट पे. यानी कि सपोज एक बिजनेस है, उसने क्या किया, आपने कुछ वैल्यूड कस्टमर को उनके डिमांड से ज्यादा का गुड्स सप्लाई कर दिया. डिमांड से ज्यादा का गुड्स सप्लाई करने का मतलब क्या होता है कि सपोज उन्होंने डिमांड किया 100 यूनिट्स, हमने उनको 150 यूनिट्स दे दिया. इन्होंने 200 डिमांड किया, मैंने इनको 250 यूनिट्स दे दिया कि यू विल चूज द 100 यूनिट आउट ऑफ द 150 यूनिट्स. इट इज डिपेंड ऑन यू. डेली आप लोग भी इस तरह की बिहेवियरल पैटर्न आप लोग अपने घर में करते होंगे. सपोज आपके रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स किसी भी स्पेसिफिक शॉप पे जाते हैं और वहां पे सपोज उनको कोई भी क्लॉथ लेना है या कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेना है, तो वो क्या कर लेते हैं, उसकी काफी सैंपल्स लेके घर चले आते हैं और घर के सारे फैमिली मेंबर उसमें से जो भी पसंद होता है उसको ले लेते हैं और बाकी को रिटर्न कर देते हैं. यही है सेम सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. मींस कि यहां पर जब भी कोई बिजनेसमैन अपना गुड्स सोल्ड करता है किसी भी बिजनेसमैन को या किसी भी कस्टमर को, तो वो कस्टमर पहले तो वैल्यूड कस्टमर होता है, यानी वो स्पेसिफिक कस्टमर होता है. सबको वो ये ऐसा नहीं कि डिमांड से ज्यादा का प्रोडक्ट दे देता है और कहता है यू कैन चूज. क्योंकि यू नो वेरी वेल कि यहाँ पर इस पर्टिकुलर पर्सन ने 100 यूनिट्स की डिमांड की, बट बिजनेस ने उसको कितना सप्लाई किया, 150 यूनिट्स. कि देख लो जो आपको पसंद हो उसमें से 100 यूनिट आप कलेक्ट कर लो, जो आपको पसंद हो बाकी को आप क्या कर लेना, रिटर्न कर देना. सो दिस विल बी नोन एज द सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस. ओके, सो व्हाट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस? समटाइम गुड्स आर सेंट टू वैल्यूड कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. यानी कभी कभी गुड्स को हम भेजते हैं किसको, कस्टमर को, कि या तो
सामान बिक जाए या उसमें से कुछ सामान क्या हो जाए, रिटर्न आ जाए। सो यू नो वेरी वेल कि सिचुएशन में जरूरी नहीं है कि आपका 100% गुड्स क्या हो जाए, सेल हो जाए। ओके, सो इसका इफेक्ट आपके कई जगह पे पड़ता है। बेसिकली व्हेन यू आर गुड्स सोल्ड द गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, तो हो सकता है एट द एंड ऑफ द ईयर आपको ये फाइंड आउट हो आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस कि उसमें से कितना गुड्स सोल्ड आउट हुआ है। और जैसे यू कैन सी दैट, एक छोटा सा एक बिहेवियरल एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं कि सपोज आपकी कोई फेवरेट शॉप है जहां पर आप रेगुलर शॉपिंग करते हो, वहां से आप रेगुलर क्लॉथ परचेस करते हो। आप इस बार शॉप पे गए एंड आपने को 5 क्लॉथ खरीदने थे और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि आपके साथ आपके फैमिली मेंबर या जिसको भी आप साथ में ले जाना चाहते थे वो नहीं गया ड्यू टू एनी रीजन। तो आपने शॉपकीपर से रिक्वेस्ट किया कि ऐसा करो कि मुझे जितना पसंद है, मुझे खरीदने तो ओनली 5 क्लॉथ है, बट आपके पास मेरे जितने पसंद के 10 to 15 क्लॉथ्स हैं वो मुझे दे दो, मैं घर लेते जा रहा हूँ, उसमें से जो पसंद आएगा वो मैं कैप्ट कर लूंगा, वो मैं रख लूंगा, एंड द रिमेनिंग गुड्स, रिमेनिंग प्रोडक्ट विल रिटर्न। तो यहां पर शॉपकीपर आपके ट्रस्ट के कारण, बिकॉज यू आर अ वैल्यूड कस्टमर, आपको वो 10 to 15 क्लॉथ्स आपको पैक करके दे देगा और आप अपने घर लेके जाओगे, वहां उसमें से अपनी फैमिली मेंबर से सजेशन लोगे और सजेशन लेने के बाद आप लोग क्या करोगे, जितना आपको पसंद है उतना आप परचेस कर लोगे, लेफ्ट ऑफ द स्टॉक विल रिटर्न टू द कस्टमर। तो यहाँ बिजनेसमैन को बेसिकली जरूरी नहीं है कि बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस ये पता चल जाए कि कितने का गुड सोल्ड हो गया है, कितने का बाकी है। सो दैट्स व्हाई सच काइंड ऑफ द इंसिडेंट आर रिकॉर्डेड आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, बिकॉज ट्रायल बैलेंस बनने तक जरूरी नहीं है कि हमें ये इंटीमेशन हो जाए, हमें ये इंफॉर्मेशन हो जाए कि कौन सा गुड सोल्ड हो चुका है और कौन सा गुड सोल्ड नहीं हुआ है। सो इस तरह के एडजस्टमेंट को ट्रीट करने के लिए वी फाइंड अ सम काइंड ऑफ द सॉल्यूशन। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एंट्रीज देख लेते हैं, व्हाट आर द एंट्रीज ऑफ सच एडजस्टमेंट। सो एंट्रीज ये होती है रिलेटेड टू द सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। द फर्स्ट एंट्री इज कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी पहले तो हम क्या करते हैं, वी एज्यूम डेट कि मेरा गुड सोल्ड हो गया। सपोज आपको खरीदना था 10 क्लॉथ, मैंने आपको 15 क्लॉथ सेल कर दिया, सो वी पास द जर्नल एंट्री बाय द 15 क्लॉथ्स, दैट इज द कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बट यू नो वेरी वेल, सारे क्लॉथ तो आपको खरीदने नहीं थे, आपने जितने क्लॉथ खरीदे उसमें से जितने क्लॉथ रिटर्न कर दिए उससे हम क्या करेंगे, द रिटर्न एंट्री विल बी पास्ड। ओके ओके, सो द नेक्स्ट एंट्री विल बी अ सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। एंड नंबर थर्ड, यू नो वेरी वेल, जब आपके पास स्टॉक रिटर्न होकर आया, जब आपने गुड्स सोल्ड किया एंड जितना गुड्स कस्टमर को पसंद नहीं आया उसमें से लेफ्ट ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय द कस्टमर, तो उसको सेल्स रिटर्न से ट्रीट नहीं करते हैं, वी पास द रेसिप्रोकल एंट्री ऑफ द सेल्स व्हेन एनी गुड्स आर सोल्ड ऑफ द अप्रूवल बेसिस। अगर आपने जेन्युइन सेल किया है उसके बाद रिटर्न आता है, सो इट विल बी ट्रीटेड फ्रॉम द सेल्स रिटर्न अकाउंट। बट इस एडजस्टमेंट में यू विल डज नॉट ओपन द you will not open the sales return account, we open a sales account. Okay, so the first entry of the at the time of the sales, that is a customer account debit to sales, and thereafter we pass the sales account debit to customer at the time of the return of the goods. And last, you know very well, जब कस्टमर आपको रिटर्न करके जाएगा गुड्स, तो आपको क्या क्या उसके साथ क्या दे देगा, स्टॉक पे दे देगा। सो स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा, सो इसका तीसरा इफेक्ट पड़ेगा, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सो बेसिकली यू कैन सी दैट इट इज अ फर्स्ट एडजस्टमेंट, इट इज अ सेकंड एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट। जिससे पहले जीएसटी की अगर हम बात करते थे उसका 3 जगह इफेक्ट पड़ता था, एंड दिस आर द एडजस्टमेंट का भी एटलीस्ट 3 से 4 जगह इफेक्ट पड़ता है। कहां कहां इफेक्ट पड़ता है, लेट्स वी सी दैट। द फर्स्ट इफेक्ट दैट इज अ, जितने का गुड्स आपने सोल्ड किया वो क्या हो जाएगा, सेल्स में तो इंक्लूडेड है, बट जितने का सेल्स नहीं हुआ है, रिटर्न हुआ है, इट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम योर सेल्स।
Okay, so the first effect is deducted from sales in credit side of PL, credit side of trading account, because you know very well ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में आप सेल्स दिखाते हो, तो सेल्स में से आप क्या माइनस कर दोगे, सेल्स रिटर्न, जितना का गुड्स क्या हो गया, रिटर्न आ गया। ये तो एट द टाइम ऑफ सेल है, एट द टाइम ऑफ रिटर्न है। ओके, तो उसमें से आप अपने सेल्स में से माइनस कर दोगे। कौन सी प्राइस माइनस करोगे, दैट इज द सेलिंग प्राइस। दूसरा इफेक्ट क्या पड़ेगा, व्हाट इज द सेकंड इफेक्ट, द सेकंड इफेक्ट विल बी अ debtors. You know very well, customer is just like a debtors, so debtor will be increased by selling price। debtors की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगी, किस प्राइस से, सेलिंग प्राइस थी, किस साइड के, कहां पे, एसेट्स साइड ऑफ बैलेंस शीट। Am I correct? No. Am I wrong? Because I am wrong because debtors increase नहीं होंगे, debtors decrease हो जाएंगे। थर्ड इफेक्ट, पहला इफेक्ट कहां पड़ा, आपके सेल्स में से क्रेडिट साइड में से सेलिंग प्राइस विल बी डिक्लाइन। सेकंड, आपके बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्या हो गया, डेटर्स की वैल्यू घट गई, जितने के कस्टमर ने आपको रिटर्न कर दिया। एंड नंबर थर्ड, इट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। सो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह शो होता है, फर्स्ट शो होता है क्रेडिट साइड ऑफ trading account and second is the asset side of balance sheet। so क्लोजिंग स्टॉक तो बढ़ना ही बढ़ना है, जब भी रिटर्न आएगा तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बोथ साइड बढ़ेगा। यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, और एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में भी ऐड हो जाएगा, लेकिन किस प्राइस पे ऐड होगा, दैट इज अ कॉस्ट प्राइस पे ऐड होगा। जब हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, व्हेन वी सॉल्व द न्यूमेरिकल ऑफ दिस क्वेश्चन, तो ये चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूं। व्हाट इज सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, बेसिकली इट इज अ सिचुएशन वेयर बिजनेसमैन सोल्ड द गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इट मींस सेल्स और रिटर्न बेसिस। यहाँ पे रेगुलर सेल्स नहीं होती है, यहाँ इस बेसिस पे सेल्स होती है कि कुछ पार्ट तो सेल हो जाएगा और कुछ पार्ट अनसोल्ड रहेगा, यानी वो रिटर्न आ जाएगा। यानी पहले मैंने सेल्स किया, फिर रिटर्न आया, एंड एट लास्ट जब रिटर्न आता है तो माई क्लोजिंग स्टॉक विल बी इंक्रीज, तो क्लोजिंग स्टॉक विल बी डेबिटेड। ओके, इसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा, पहला, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल्स में से सेल्स प्राइस, जो पार्ट रिटर्न आ चुका है, ये जो रिटर्न आया है उतनी की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे। दूसरा, यू नो वेरी वेल इट इज अ क्रेडिट सेल्स, दैट्स व्हाई डेटर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी बाय द सेलिंग प्राइस इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। थर्ड, आपका क्लोजिंग स्टॉक तो इफेक्ट पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी दो जगह इफेक्ट करता है, फर्स्ट क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट एंड एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सो क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट प्राइस से क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, बोथ साइड, बोथ आइटम्स में, बोथ अकाउंट्स में, दैट इज द ट्रेडिंग अकाउंट एज वेल एज द बैलेंस शीट। Okay, so please note down this topic in copy properly, and thereafter we will move to the practical part of this topic. So at the end of today's video, let's we move to the first method of depreciation, that is the straight line method. So what is the straight line methods? And the important points related to the straight line method are as follows. The first point is, it is also known as, it means the straight line method is also known as original cost method, fixed installment method, मेथड etc। यानी कि स्ट्रेट लाइन मेथड का और भी बहुत सारा नाम है। पहला नाम है, द फर्स्ट वन इज द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, द सेकंड वन इज अ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब इंस्टॉलमेंट स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रीशिएशन फाइंड आउट करने का दो फॉर्मूला है। द फर्स्ट वन इज एनुअल डेप्रीशिएशन इक्वल्स टू, that is annual depreciation equals to
ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। यानी कि आप स्ट्रेट लाइन मेथड की हेल्प से दो तरह से डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मूला इज एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, और दूसरा फॉर्मूला होता है दैट इज एनुअल डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू, दैट इज अ डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू ओरिजिनल कॉस्ट माइनस मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। जितने महीने का डेप्रिसिएशन होगा मंथ्स अपॉन 12, और अगर डेज में डेप्रिसिएशन होगा तो डेज अपॉन 365। So it is a second important point related to the straight line method. The first one is what is the other name of the straight line method, and second is what is the formula used while we follow the straight line method. The third important points related to the straight line method is, according to straight line method, this means according to straight line method the amount of depreciation will be same। यानी कि डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो सेम रहेगी फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी अगर आप इस साल किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो सेम एज इट इज सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसका नाम ही है स्ट्रेट लाइन मेथड। एंड द फोर्थ पॉइंट इज व्हेन वी फॉलो द स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी जब हम स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो करते हैं तो सिचुएशन में द वैल्यू ऑफ एसेट्स रिटर्न ऑफ टू जीरो, यानी एसेट्स की जो वैल्यू है वो जीरो तक रिटर्न ऑफ हो जाती है, यानी जीरो तक हो जाती है आफ्टर द यूजफुल लाइफ। हाउ, लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट, कैसे होती है इस पे एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। सपोज we take the assets whose original cost of rupees, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख रुपए, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। ओके, so original cost is 10 lakh and rate of depreciation is 10% per annum। इसको 5 लाख कर देते हैं, 5 लाख, and इसका rate of depreciation is 10%, and question is asking about the right of the depreciation by straight line method। आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है किस मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड को बोलते हैं एसएलएम मेथड, एसएलएम मेथड। तो उसमें डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा आप खुद ही देख लो। ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी फर्स्ट ईयर में, 5 लाख, उस पर फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगा, कितना आया 5 लाख का 10% कितना हुआ 50,000। सो एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर आपका वैल्यू कितना हुआ 4,50,000। फिर सेकेंड ईयर फिर डेप्रिसिएशन लगाया, कितना डेप्रिसिएशन लगा 50,000। यानी हमेशा इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है इट विल बी चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। इस पे डेप्रिसिएशन हमेशा किस पे लगता है, ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। तो द पॉइंट नंबर ई, इसमें डी के साथ साथ एक पॉइंट और निकल के आ रहा है कि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज होता है। एसेट्स की किस कॉस्ट पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट। यानी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 5 लाख, तो हमेशा जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो किस पे लगेगा 5 लाख का 10%, फिर आया 450, फिर सेकेंड ईयर डेप्रिसिएशन किस लगेगा 5 लाख का 10%, दैट इज 50। तो वैल्यू कितनी बची 4 लाख। फिर थर्ड ईयर फिर तुम्हें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो ये नहीं कि 4 लाख का 10%, नो, 5 लाख का 10%, दैट इज 50,000। सो वैल्यू इज 350। अब ऐसे अगर हर साल 50,000 लगेगा तो यू कैन सी दैट पहला क्लियर हुआ किस पे डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होता है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। पॉइंट नंबर 1 इज क्लियर। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी सेम, इसमें देखो डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या है, सेम है।
एक और चीज, वैल्यू ऑफ एसेट्स रिटर्न अप टू जीरो आफ्टर द यूजफुल लाइफ। एसेट्स की वैल्यू एक समय के बाद क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे? 5 लाख में से 10 साल तक 50,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करो तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। 5 lakhs 450 4 350 3 250 2 150 150 0, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन क्या है, कॉन्टिन्यूसली रेट से उस पर चार्ज हो रहा है। सो दिस इज द ओवरव्यू रिगार्डिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, सो प्लीज नोट डाउन ऑल द पॉइंट्स। सो लेट्स वी टेक द एसेट्स अकाउंट। हम एसेट्स अकाउंट का एक छोटा सा फॉर्मेट भी देख लेते हैं फॉर क्रिएटिंग अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग दिस टॉपिक। That is a format of the assets. When we prepare a ledger account of the depreciation account, so we follow this format. That is a date, particular amount, date, particular amount. So you know very well, at the beginning of the year हम assets खरीदेंगे. Watch carefully. So to bank, that is 5 lakh. और हर साल के एंड पे, एट द एंड ऑफ द ईयर पे इस पे क्या लग रहा है, डेप्रिसिएशन। सो बाय डेप्रिसिएशन एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर बैलेंस कितना हमने हुआ था एग्जांपल से 450। ये फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया। फिर सेकेंड ईयर आप क्या करोगे, ये बाई बैलेंस बीडी को इस साल लेकर आओगे, लिखोगे टू बैलेंस बीडी कितना 450। फिर सेकेंड ईयर के एंड पे क्या लगेगा, अगेन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की वैल्यू कितनी है 50,000। एंड नाउ फिर बैलेंस कितना आएगा 4 लाख। मान लो क्वेश्चन में कहा हुआ है कि प्रिपेयर द एसेट्स अकाउंट फॉर द 2 years, so this is a solution because this assets account is prepared with the help of the straight line method. Okay, so in this video firstly we solve the practical problem related to the financial statement with adjustment. Thereafter we discuss the last adjustment of the sole proprietorship, that is a goods sold on approval basis, and at last we revise the first method of the depreciation, that is a straight line method. आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।